Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the second video on placement related stuff, and those who have not seen the first part of this series that was on most asked interview question, make sure you watch that video. You can watch that video by clicking on the card above or the link will be in description below. So if you talk about this video is all about an important section of any aptitude test, that is pseudocode, and I hope you all know what is pseudocode and how a pseudocode looks like. It looks like this. So before we move further, I'd like to discuss something very important with you guys, that is, please like this video right now, and those who have not subscribed this channel till now, please subscribe this channel because I will be uploading more such videos on game development, programming language, placement related stuff and all those good things. And the third one, please share this video as much as you can if you find this informative. And the last one is, please watch this video till the end because at the end a puzzle is waiting for you. So let's talk about this question. This question contains a pseudocode, and a pseudocode is free from header files and footer and all those things. It only contains the main algorithm, or we can say that the main logic of the code. So here the question is, what will be the output of the following code if the n, or we can say if the input is 35. So here we have given a loop, do while loop, and the value of n is given, and we have to give the output of this code. So let's see how we can solve this code. So this type of question can be solved by making a table. So let's make a table like this, and all we have to do is just write down the variables used in this question, that is n, I, and n mod 10. It is not a variable but an expression, but we are writing here because it has some value. So initially the value of n is 35 and I equal to 0, and it is an expression, so leave it. So n की वैल्यू 35 है, डू वाइल लूप है, इसका मतलब कि जो कंडीशन है वो बाद में चेक होगी इन सब के बाद. सो लूप में चलते हैं. 35 था, n इक्वल टू n प्लस 3 दैट इज 38 एंड i की वैल्यू 1 एंड कंडीशन चेक होगी, दैट इज n mod 10, इसका वैल्यू है 8 एंड ये फॉल्स है, आई मीन ट्रू है. तो ये कंडीशन ट्रू है तो वापस लूप में जाएगा. सो 41 n इक्वल टू 2 एंड दिस टाइम इसकी n mod 10 विल बी 1 एंड कंडीशन विल बी ट्रू. सो अगेन लूप में गया 44 एंड यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस प्लस, सो 3 अगेन इसका वैल्यू क्या है 4 है, ट्रू. एंड यहाँ पे 47 अगेन लूप में गया, n इक्वल टू n प्लस 3, 47 हो गया, i इक्वल टू 4 एंड अगेन यहाँ पे 7 एंड 2. नाउ कंडीशन ट्रू था तो वापस से लूप में जाएगा, 50 हो जाएगा इस बार एंड i की वैल्यू हो जाएगी 5. ओके, एंड हियर कंडीशन विल बी चेक लाइक 0 बिकॉज पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड कंडीशन विल बी फॉल्स. सो ये लूप से बाहर आ जाएगा. सो द फाइनल आउटपुट दैट इज n प्लस i is equal to 55. So this option is correct. So 55 is correct option. So let's move further to the next question, that is hash table. Consider a hash table with 9 slots. The hash function is this k mod 9. The collision are resolved by chaining. The input are given as 14, 46, 91, 15, 20, 42, 12, 17 and 10. So we have to find the maximum, minimum and the average chain of length. So before we move further in this question, let's talk about what is a hash table. So a hash table is a stack, or we can say that it is a data structure which consists of indexes, and those indexes are mapped with the input given in the question by using a hash function, that is k mod 9 in our case. So let's see how we can solve this question. So let's make a table of 5 into 9 because there are 9 slots, so we are making a table of 9, and
and we will write the index of this hash table as 0 to 8 because index of any array or any stack start from 0 to n minus 1. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so these are the index of this hash table. Now, by using this hash function, that is k mod 9, and the value of k is this 14, 46, 91 to 10, we have to map all this input in this hash table. How we can do is just replace the value of k by this input, like 14 mod 9, and the answer of this 14 mod 9 will be 5. So just write down 14 here. Like this, 46, what will be the remainder if we divide 9 with 46? So I think this one, because 45, 9 into 4, 9 into 5 is 45, so remainder will be 1, 46, and the next value is 91. So again here the next value is 15, so I think here 20, so 20 will be mapped here. So by this table we can say that the maximum length of chain is 3, this one, the minimum length is 0, and the average chain length is the number of input divided by the indexes, that is 9 by 9, that is 1. So this option is correct, so let's mark it as red. Moving on to the next question. So here the question is, how will you find the minimum element in the binary search tree? So before we solve this question, let's see what is a binary search tree. So this is a binary search tree. Yeah. A binary search tree is something like this. Topmost node is called as a root node, that is 8, and the value which is smaller than the value of root node is placed at the left side of the root node, and the value those are greater than the root node are placed at the right side of the root node. Like here 3 is less than 8, so it is at the left side of the 8, and 10 is greater than the 8, so it is here. And again 14 at the right side, 13 which is less than 14 but greater than 8, so it is at the right side of the 8 but left side of the 14. Likewise, we can conclude the BST as the minimum value of the BST lies as the leftmost node of the BST, which is 1 here. So let's back to the question. So let's back to this question. All we have to find is the minimum element of the binary tree. So the concept is very clear, that is we have to traverse the tree to the leftmost node. So here we have 4 options like these. बस हमको देखना है कि कौन से ऑप्शन में हम लेफ्ट मोस्ट पहुंच जा रहे हैं. सो पहला ऑप्शन क्या है, हमारा रूट है. जब तक उसका लेफ्ट एलिमेंट नल नहीं होता तब तक उसको रूट बनाओ और लेफ्ट की ओर ट्रेवर्स करते जाओ और उसको प्रिंट करा दो. दैट्स इट. एक्चुअली ये सही आंसर है. अगर बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसकी जो आंसर होगा ना वो एक पहले आके रुक जाएगा. मतलब अगर बात करें इसमें, तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो 3 होगा एंड द फर्स्ट वन का जो आंसर होगा वो 1 होगा. बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं. एंड यहाँ तो भाई राइट जाए तो कोई मतलब नहीं है इसको देखने का. बस इन दोनों में डाउट होगा आपको. बस ये देखना है कि हमको पूरा ट्रैवर्स करना है टिल द एंड, टिल द नल ऑफ द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, जो कि इसमें नहीं होगा. सो द आंसर इज ए. वी विल मार्क इट एज रेड. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड डू. सो ये कोड है हमारा, ये क्या करेगा बताना है. बहुत ही सिंपल है. बस इतना बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो प्री ऑर्डर के लिए है या फिर इन ऑर्डर के लिए या फिर पोस्ट ऑर्डर या फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है कि अगर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एकदम लास्ट में लिखा गया है दोनों फंक्शन के, तो वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है. सो यही आंसर है. वही अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बीच में लिखा होता दोनों फंक्शन के, तो वो इन ऑर्डर होता. और वो अगर ऊपर लिखा होता यहाँ पे, तो वो प्री ऑर्डर होता.
That's it. So let's see the next question, that is this. What will be the value of this code, this pseudo code, if n equal to 127? सो अगेन इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, वो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद. उससे पहले चलते हैं अपने ट्रेडिशनल वे से कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम पूरा वेरिएबल लिखने वाले हैं. सो फर्स्ट वेरिएबल इज n i s r p. हो गया. So the value of n is 127, value of I is 0, s की वैल्यू भी है 0 और i की वैल्यू तो बाद में पता चलेगा. सो फंक्शन सैंपल, फिर जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम लूप में चलेंगे, घूमेंगे. सो r की वैल्यू क्या है, n mod 10, सो इट इज लाइक 7. p की वैल्यू क्या है, 8 की पावर 1, सॉरी 8 की पावर 0, that is 1. 8 की पावर 0 is 1. and ओके, इसको नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं क्योंकि यहीं पे वैल्यू चेंज हो रही है. 7 और 1, एंड यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो रही है, s इक्वल टू s प्लस पी इंटू आर, दैट इज 0 प्लस 7 इंटू 1, दैट इज 7. एंड i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट इज 1. एंड n की वैल्यू हो गई n डिवाइड बाई 10, दैट इज 12. ठीक है. अब अगेन लूप में चलते हैं क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0. सो r इक्वल टू n mod 10, दैट इज कितना, 2, बिकॉज n की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. एंड यहाँ पे p इक्वल टू 8 की पावर i मतलब कि 1. सो 8 रेज टू 1 इज 8. एंड s इक्वल टू 7 प्लस p इंटू r, that is a into 8 into 2, that is 16. so ये कितना होता है, 7 plus 16, that is 23, है ना. I equal to I plus 1, that is 2. and here again n divided by 10, that is 1. now again I is greater than 0, so यहाँ पे again हम आएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है. p की वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 8 रेज टू पावर 2, दैट इज 64. एंड यहाँ पे s इक्वल टू s प्लस p स्टार r, दैट इज 23 प्लस 64, दैट इज 87. अगेन i की वैल्यू 3 एंड यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 0. अब कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड, आई मीन फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएंगे. सो द आंसर विल बी 87. मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं क्योंकि वो स्लाइड से बाहर जा रहा था और कोई रीजन नहीं है. 87 हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन. ये दो थियरी क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो बिना सोचे ओमेगा ऑफ n कर देने का. एंड आई थिंक यू नो हाउ, बिकॉज अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमको पूरा n साइज इतना ट्रैवर्स करना पड़ता है सर्च करने के लिए, इसलिए ओमेगा ऑफ n. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the worst case the number of comparison needed to search a singly linked list of length n for a given length is. इसका भी आंसर n होने वाला है क्योंकि हमको पूरा सर्च करना है वर्स्ट केस में, और पूरा सर्च करना है तो हमको जो लेंथ है उतने बार ट्रैवर्स करना, उतना मतलब हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. सो द आंसर इज n. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is this one.
Let P be a quick sort program to sort number in ascending order using the first element as pivot. Let T1 and T2 be the number of comparison made by P for the input 1, 2, 3, 4, 5 and 4, 1, 5, 3, 2 respectively. तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट होता क्या है? इट इज द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड सिमिलर टू मर्ज सॉर्ट मेथड, जिसमें पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम प्योट लेते हैं एंड प्योट के थ्रू हम बाकी सब जो एलिमेंट होते हैं उससे कंपेयर करते हैं. अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो जो भी एलिमेंट है, ये बाद के जो भी एलिमेंट है उस लिस्ट में एक्सेप्ट द प्योट, उसको कंसीडर करेंगे बाकी एलिमेंट्स को, और जो छोटा होगा उस प्योट एलिमेंट से उसको लेफ्ट साइड में और जो बड़ा होगा उसको राइट साइड में लिखने वाले हैं. एंड यस, सो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा. सो लेट्स सी हाउ इट इज सॉल्व्ड. उससे पहले अगर हमारे पास पहले से ही कोई सॉर्टेड लिस्ट है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका जो होता है कंपेरिजन वो वर्स्ट केस हो जाता है. मतलब कि हमको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा उस केस में. एंड अगर ये है तो फिर ठीक ही है. सो लेट्स सी हाउ. लाइक 1 2 3 4 5 है हमारे पास, प्योर एलिमेंट हमारा 1 है, तो हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट 1 को छोड़ के कौन सा एलिमेंट 1 से छोटा है. सो इन आवर केस कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, सो ये एम्प्टी रहेगा लेफ्ट साइड वाला. एंड राइट हैंड साइड में 2 3 4 5. द फर्स्ट एलिमेंट इज प्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज. सो द 2 इज द प्योर एलिमेंट. एंड अगेन हम सर्च करेंगे कौन सा एलिमेंट छोटा है 2 से, कोई नहीं है, सो यहाँ पे एम्प्टी. एंड 3 4 5 एट द राइट, जो बड़ा है 2 से. एंड अगेन 3 को हम प्योर एलिमेंट ले लेंगे, अगेन कोई छोटा नहीं है, तो लाइक दैट 4 5 एंड 5. सो if we talk about the second list, that is 4 1 3 2 5, here the first element is 4 and it is pure element. and here 4 से हम बाकी जितने भी एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं, that is 1 5 3 and 2. so 1 छोटा है 4 से तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, 5 बड़ा है 4 से, इसीलिए 5 को हम कंसिडर करेंगे. एंड अगेन 5 को हम बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं उससे कंपेयर करने वाले हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ 5 कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. इट मीन्स कि हम 5 को 3 से कंपेयर करेंगे एंड 5 को हम 2 से कंपेयर करेंगे. 5 बड़ा है इसलिए वो एट द एंड 2 को रिप्लेस कर देगा. एंड द लिस्ट विल बी लाइक 4 1 2 3. एंड अगेन 4 will be replaced by 3 because 4 is greater than 3. So the next line will be like 3 1 2 4 and 5, obvious. And here 3 will be the pure element and हम 3 से कंपेयर करने वाले हैं बाकी सब अपने उस लिस्ट में. सो 1 and 2 जो 3 से छोटे हैं तो वो लेफ्ट साइड में आ गए, कोई ज़्यादा फर्क दिखा नहीं हमको. 1 होगा प्योर एलिमेंट अगली बार, एंड 1 2 से छोटा है इसलिए 2 राइट में आ गया 1 के, दैट इज हेयर. एंड फाइनली हमारा ये कंपेरिजन वाला बन चुका है. एंड 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक है, अब हमको बताना क्या है कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या है. सो T1 is this 1 2 3 4, T2 is this 1 2 3. So T1 is greater than T2. This one is the correct option. I think you are clear. अगर कुछ नहीं आता तो हम कमेंट पे बात कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझको अगर आप मुझको जानते हो तो. एंड आई होप कि आप मुझको जानते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. दिस इज लास्ट क्वेश्चन. Consider the following piece of code. What will be the size required for this code? This is again a very simple. एक टेबल बनाते हैं like this. जरूरत भी नहीं है टेबल की, हमको दिया हुआ है कि इंट का साइज 2 बाइट दिया हुआ है हमको सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल फाइंड करने हैं एंड उसका सम हम निकाल ही लेंगे. लाइक एक वेरिएबल है सम, सो 2, एक वेरिएबल है आई, सो प्लस 2. एंड यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें एक एरे है और एक इंटीजर है, सो 2 + 2
that is 4। एंड यहाँ पे एक फॉर लूप है जिसके अंदर एक इंटीजर का वेरिएबल घुमा रहे हम लोग सम नाम का। सो 2 plus 2n, so the answer will be like 2n plus 8 and I hope you are clear। हो जाना चाहिए, जितने वेरिएबल्स हैं ना उसका बस सम निकालना है, बस हो जाएगा। अगर वो लूप है तो उतना इंटू नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि जब लूप निकालना है तो 2 that is the size of integer multiply by the number of variables that is n, so 2n हो गया। So this is the answer। And before we stop this video, a puzzle for you guys, that is this। इसमें रूल बहुत ही सिंपल है, 1 to 9 हमको इसमें वैल्यू पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो 9 बॉक्सेस हैं, 1 to 9 हमको वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। एंड मेक श्योर कि अगर हम रोज का सम लेंगे तो 23 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, लाइक दिस। एंड अगर हम कॉलम का सम लेते हैं तो ऐसा, अगर हम ऐसे सम लेते हैं तो 25 15 एंड 17 ऐसे आने चाहिए। एंड द नंबर शुड बी यूनिक बिटवीन 1 to 9, मतलब अगर यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू दैट विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क। ये एक आपका पजल है, सॉल्व इट एंड आई वांट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यो दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। और मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने स्टेटस में, क्योंकि जितना ये वीडियो स्प्रेड होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस ऑन गेम डेवलपमेंट, प्लेसमेंट रिलेटेड स्टफ और एनी एजुकेशनल स्टफ। सो अलविदा, गुड नाइट, गुड बाय, लव यू।